ادابرز یوٹیوب چینل انکشاف پروفیسر امجد نذیر نازک حاضر خدمت ہے۔ آج کے ویلاگ میں افواہوں کی پھکی آپ کو دیں گے۔ ہم حکیم نہیں جو آج آپ کو پھکی پکڑنے کو دیں۔ جھوٹی افواہ بھی ایک پھکی ہے، کیسے دیکھ لیجئے۔ جہاں انسانوں میں سچائی کی تلاش کا مادہ پایا جاتا ہے، وہیں انسانی فطرت میں تسکین بخش افواہوں اور جھوٹی کہانیوں سے خود کو مطمئن کرنے اور جھوٹی مستقبل کی امیدیں قائم کرنے کا رجحان بھی عام ہے۔ یہ بھی انسانی جذبات کی انا کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ دراصل خیالات اور ہمدردیوں کا جھکاؤ بھی غیر ارادی طور پر ایسی افواہوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ بالکل جاگتے میں خواب دیکھنے کی طرح ہے، جو ہر چند ہے ہی نہیں۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کی کشمکش کا دور تھا، جو موجودہ پاکستان یعنی اس وقت کے مغربی پاکستان اور اس وقت مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور موجودہ مغربی پاکستان یا اس وقت کے مغربی پاکستان موجودہ پاکستان کے درمیان تھا۔ مشرقی پاکستان پر اپنا کنٹرول مغربی پاکستان کھو رہا تھا۔ اب وہ بزور بازو اس کوشش میں تھا کہ یہ کنٹرول برقرار رکھا جائے، کیونکہ بات چیت اور مکالمے کا دور ختم ہو چکا تھا یا اس کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ دونوں بازو ایک ہی گریباں یعنی اتحاد کو چاک کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی اتحاد و اتفاق کے برعکس وہ ایک دوسرے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرے نے تو پھر آزادی کا اعلان کر دیا، آزادی کا نعرہ بلند کر دیا۔ ایسے حالات میں تیسرا ملک بھارت مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے لیے اپنی جبری خدمات کے لیے حاضر ہوا اور بالآخر مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دونوں بازو الگ ہو گئے، اتحاد کا گریباں چاک چاک ہو گیا۔ مشرق کی طرف آزادی کا سورج چڑھ چکا تھا اور مغرب کی طرف سوگ کی گٹائیں چھا گئی تھی۔ اس جنگ کو جو دو بھائیوں کے درمیان تھی، بھارت نے پاک بھارت 1971 کی جنگ میں بدل دیا۔ حالات واضح ہوتے جا رہے تھے اور آنے والا نقشہ بالکل واضح تھا۔ ایسے میں تسکین بخش افواہوں کا دور چل پڑا۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے دو اطلاعاتی یا دل کو خوش رکھنے والے کے لیے اچھا خیال پیدا کرنے والی افواہیں پھیل گئی۔ اس میں پہلی افواہ صاف فیکٹری سے تیار ہوئے مارکیٹ میں بے مول مل رہی تھی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ جس کو امریکہ کہتے ہیں، USA نے ایک بحری بیڑا پاکستان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ بس آیا ہی چاہتا ہے، انڈیا کے پرخچے اڑا دے گا، پاکستان کو فاتح بنا دے گا۔ یہ بحری بیڑا امریکہ صرف امریکی شہریوں کو مشرقی پاکستان سے بحفاظت نکالنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہاں خوش فہمی کی حد بے حد تھی۔ یہاں یہ تھا کہ یہ رچرڈ نکسن صدر امریکہ اور وزیر خارجہ امریکہ ہنری کسنجر کی کوئی چال تھی۔ سوچنے والی یہ بات ہے، بھلا امریکہ انڈیا سے پاکستان کے لیے کیوں ٹکر لیتا؟ اس بیڑے میں کیا کچھ شامل تھا، یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ یہ امریکی 7واں بحری بیڑا انٹرپرائز تھا۔ اس میں 7 تباہ کن طیارے، ایک ہیلی کاپٹر کیریئر اور ایک تیل کیریئر شامل تھا، جس پر لگائے افواہ سازی کی گئی تھی۔ بیڑے نے مدد کے لیے کیا کیا؟ ہاں، بیڑے نے جھوٹی امید رکھنے والوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ بس اس بیڑے میں ایک بات تھی کہ بغیر ایندھن بھرے پوری دنیا کا چکر لگا سکتا تھا۔ وہ چکر اس نے کیا لگانا تھا؟ چکر کھانے والوں کو چکر دے گیا اور امیدوار چکر کھاتے رہ گئے۔ اب ہم دوسری افواہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ افواہ بھی اسی جنگ سے متعلق ہے۔ پاکستانیوں میں ایک عام گردش کرنے والی افواہ، ہاں جی، یہ حیرت انگیز اور دلچسپ ہے، ہر کسی کی زبان پر تھی
और हैरत से सुनी और सुनाई जा रही थी। कहते हैं चीन ने पाकिस्तान से हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती का हक निभाने के लिए, हिंदुस्तान को जंग का मजा चखाने के लिए बंदरों की फौज भेज दी। ये ज़माना आज के ज़माने से ज़रा मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ था। खबरों के लिए रेडियो और अखबारात पर इंहिसार करना पड़ता था। बंदरों की फौज के आने की खबर इस तेज़ी से फैली कि हर कोई चीन के हिवानी फौज की तारीफें करने लगा। तरह तरह की कहानियां बस्ती बस्ती गर्दिश करने लगी। कई एक शख्स ने तो दावा किया उसने बंदरों की फौज को के कर्नल से मुलाकात भी की है। एक साहब ने बताया कि वो शहर रेलवे स्टेशन के बंद फाटक पर रेलगाड़ी के इंतजार में खड़ा था। जब रेलगाड़ी आई तो उसने खिड़की में से बहुत से बंदर फौजी अपनी खुली और हैरतज़दा आंखों से देखे। बहुत से लोगों ने फिरते जज्बात से पक्का इरादा कर लिया कि वो दफाई फंड में बुने हुए चने जरूर भेजेंगे ताकि बंदरों का शुक्रिया अदा हो सके। बंदरों ने क्या आना था, अफवाहों के शकीन बंदर बनते रहे और बंदर बनाते रहे। जो होना था वो हो के रहा। भले मानस अमेरिकी बहरी बेड़े की तरह बंदरों का इंतजार ही करते रहे। आपको मालूम है इन दिनों इसराइल और हमास के दरमियान जंगी जोर आजमाई के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंसानी जानवरों और अमलाक का बहुत नुकसान हो रहा है। इंसानियत तड़प रही है। जंग की रोकथाम के इकदाम तो नजर नहीं आते। दोनों तरफ से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इसराइल का पलड़ा भारी है, जो एक बाकायदा और फौज के जरिए जंग लड़ा है। अगरचे इब्तदा में मिसाइलों की बारिश करके हमास ने ही जंग की इब्तदा की थी। नतीजा क्या निकलना था? यह निकला है यही कि आखिर को जंगबंदी हो जाएगी। जब तक ये होगा फलस्तीन के बाशिंदों पर क़यामत टूटती रहेगी। जंगी जुनून ने इंसानों के खून को अर्जा कर दिया है। रही बात कि इसमें अफवाह वाली कौन सी बात है, यकीनन यहाँ तक तो हक़ीक़त की बात ही है। जंगी जुनून में मौसमियाती यलगार ने एक अफवाह को जन्म दिया है जो समाजी या बलागी रास्तों पर आवारा फिर रही है। इस अफवाह के मुताबिक किसी भी मुल्क की तरफ से फ़लस्तीनियों की मदद नहीं की गई और ना हो रही है, तो कुदरत ने इस मकसद के लिए अपना मोजज़ा दिखा दिया है। हुआ यूं, 17 अप्रैल 2024 को मसनूई बारिश के लिए इंतजाम के नतीजा में दुबई में खौफनाक मूसलाधार बारिश लगातार 12 घंटे तक होती रही। महकमा मौसमियात ने 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश के पानी से ज़बरदस्त तबाही फैला दी। सप्लाई बंद हो गई। एयरपोर्ट की बंदिश हो गई। तय खानों और एयरपोर्ट पर पानी ने सब कुछ तहस नहस और तहबाला कर दिया। जदीद तमीर शुदा इमारत बुर्ज खलीफा की 163 मंजिलें हैं। इसको भी खतरा लाहक हो गया। बिजली का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया। यूँ कहें कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। क्लाउड सीडिंग की वजह से दर्जा हरारत अचानक 10 दर्जे गिर गया, यानी कम हो गया और मौसम की तूफ़ानी सूरत पैदा हो गई। गर्ज, चमक और बादोबारों का तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता। ये कुदरती आफत इंसान की जहानत का नतीजा था। यकीनन ये खुद साख्ता फलाही मंसूबा था ताकि गर्मी का जोर टूट जाए और शहर में हरियाली और खुशगवार मौसम पैदा किया जा सके। इंसानी गलती के दुरुस्त अंदाज़ा या क्लाउड सीडिंग के गैर मुनासिब दखल की वजह से बारिश का निज़ाम तूफ़ानी निज़ाम में बदल गया। अफवाह कारखाने ने इंसानी हमदर्दी तो बरामद ना हो सकी, अलबत्ता नाम नहाद तस्कीनी करिश्मा का ढंडोरा पीटा गया कि अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों का साथ ना देकर कुदरत को इंतकाम के लिए ललकारा है या उसका मौका फराहम किया है। इसका सबूत ये है कि दौरान गर्ज बादलों में फ़लस्तीन का नक्शा ज़ाहिर हो गया है, जिसे हज़ारों लोगों ने देखा है। ये पहलू बसाते खुद तवज्जो तलब है। लोगों की तवज्जो से इंसानी अलमिया से हटाने के लिए एक बेरूह की पक्की का इंतज़ाम कर दिया गया। सलाब ज़दगान और फ़लस्तीनी मज़लूम क्या अब बादलों में ज़ाहिर होने वाले नक्शा से फैज़याब हो सकेंगे? मुसीबत ज़दों के लिए इंसानी माशरे में कोई मददगार नहीं रह गया। काश कभी दुखी इंसानों के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं। इस तरह के करिश्मे सिर्फ अफवाहों में के दोष पर पैदा हो सकते हैं। हकीकत में अमल से ज़िंदगी बनती है। अमरीकी बहरी बेड़ा हो या बंदरों की फ़ौज,
फ़लस्तीन का नक्शा हो या कोई ऐसी सुकून आबरदवा महज अफवाह है। अफवाहों से मसले हल नहीं होते, अलबत्ता तवज्जो का मरकज़ बदल जाता है। अफवाहों की फक्की फक फक है, यहाँ बक बक है। असामा बिन लादेन मौजूदा दौर के जहादी फलसफे का बहुत बड़ा अलमबरदार और बहुत बड़ा करदार था। अमेरिका को मतलूब था, अफगानिस्तान से जलावतन होकर पहाड़ों में छुपता फिरता था, जिसे अमेरिकी मैरीन अमेरिका की जो एक बहरी फौज है ने 2 मई 2011 के दिन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक शब हमेशा की नींद सुला दिया। इससे पहले यह दावा किया जाता था दुनिया की सुपर पावर या आलमी ताकत अमेरिका के जासूसी अदारे इतने बेबस हैं कि एक मर्द का ठिकाना मालूम न कर सके। अफगानिस्तान से वो किसी नामालूम सिमत को किसी नामालूम मकाम के तरफ निकल गया। एक जासूसी अदारा के सरबराह ने तो यहाँ तक कह दिया कि ओसामा बिन लादेन बीमार शख्स था, कहीं इलाज न मिलने की वजह से जंगलों या वीरानों में जिंदगी से हाथ धो बैठा है। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं मिलती है, उसे कहीं सुकून मिल गया होगा। अमरीकियों ने ओसामा बिन लादेन की लाश को हेलीकॉप्टर पर लाद कर रातों रात अपने समंदरी अड्डे पर समंदर के बीच पहुंचा दिया। वहां जाकर उसने DNA टेस्ट के जरिए तस्दीक भी कर ली कि मरने वाला कौन है। यकीनन वो ओसामा बिन लादेन ही था। अफवाह जो गर्दिश करती है वो यूँ है, ओसामा बिन लादेन किसी के हाथ नहीं आया, बल्कि अमरीकियों ने उसके हमशक्ल को मारकर समंदर गर्क कर दिया। ये सब सियासी चाल थी। अमरीकी सदर को आइंदा सदारती इंतखाबात में कामयाब करवाना था, जिसके लिए एक झूठी कहानी बनाई गई। एक और बजाते खुद रूहानी और सियासी दानिशवर बड़े दूर की खबर लाए। उनके मुताबिक ओसामा बिन लादेन अलाही सार में है। वो खरासान के इलाके में हुकूमत खास के मतहत लाया गया था, पर्दा गैब में महफूज व मामून है। वो इमाम महदी के ज़माने में ज़ाहिर होगा, उसका दस्ते रास्त बनकर मददगार बनेगा और फिर रोए ज़मीन पर सब ठीक हो जाएगा। ये सब अफवाहें खुद को सहारा देने के कमज़ोर दलाइल और मनगढ़ किस्से कहानियाँ हैं। हक़ाइक़ से नजरें चुराने और अपनी ख़ाबिदा ख्वाहिशात के लिए कमज़ोर बैसाखियों का मुहैया करना है। याद रखिए, ऐसी अफवाहों से हालात को तस्कीन मिल सकती है, आवाम को नहीं। ना ही इससे हालात का रुख मोड़ा जा सकता है। शायद ऐसे ही मौका के लिए गालिब ने शेर लिखा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अफवाहों का सिलसिला दिल के बहलाने के लिए हो या दिल को खुश रखने के लिए, इनके दुनिया से तारीफ मस्ख नहीं हो सकती। अलबत्ता इंसानों की सोच का गला घूंटने के लिए एक तदबीर या हरबा ज़रूर है, मगर आरज़ी।